Okay. So now functions of horizontal cells. One thing you need to understand: horizontal cells, they lie in the outer plexiform layer, and the function is lateral inhibition. This we saw in the last lecture, right? That the adjacent cone cells or the adjacent photoreceptor cells, they inhibit each other. So this lateral inhibition, horizontal cells, is a very important cell. It limits the spread of excitatory input. जो एक्साइटेटरी इनपुट, क्योंकि क्या है कि यदि एक सेल, बहुत सारे सेल्स रेटिना में इतने सारे लेयर्स है, all the cells are lying very close by. If one cell gets excited, then it is very likely that this excitation may spread because synapses and lot of dense connections are there. तो एक एक्साइटेटरी इनपुट जो है काफी सारे लेयर्स में स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी है. So if the horizontal cells are there, then the lateral spread is prevented. And it is very important to allow this lateral inhibition is important for a very high visual accuracy, especially the contrast borders, they are appreciated. So the first thing, like the lateral inhibition, the first cell is the horizontal cell which performs this function. So for horizontal cell you just need to remember this much. ये इतना पूरा जो है मैंने गाइडेंस से लिया है, तो ये आपको याद रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं. बाइपोलर सेल्स की हमने बात ऑलरेडी कर ली थी कि ऑन सेंटर बाइपोलर सेल्स है, ऑन सेंटर ऑफ सराउंड और ऑफ सेंटर ऑन सराउंड बाइपोलर सेल्स. दो टाइप के बाइपोलर सेल्स है. यदि आपको रिकैपिचुलेट करना है तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा उसके बारे में. आप प्रीवियस जो है वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हो. तो दो टाइप के बाइपोलर सेल्स हैं और उनका जो ऑन सेंटर ऑफ सराउंड सेंटर सराउंड एंटागोनिज्म है वो ही आपको याद रखना है. एमाक्राइन सेल्स. So what are amacrine cells? Amacrine cells, they will lie in the inner plexiform layer, और inner plexiform layer के अंदर वो same it does almost the same function of lateral inhibition, but there are several types of amacrine cells. Amacrine cells के बहुत सारे types हैं. So these cells, they will start analyzing the signals better. थोड़ा एक स्टेप हाई जाके हॉरिजॉन्टल सेल से एक स्टेप हाई जाएंगे और सिग्नल्स को एनालाइज करना शुरू करेंगे. कैसे? द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट टाइप ऑफ एमाक्राइन सेल इज, इट इज अ पार्ट ऑफ द इनडायरेक्ट पाथवे. इनडायरेक्ट पाथवे मैंने आपको बताया था कि हमारे फोविया में और रेस्ट ऑफ द रेटिना में दो अलग अलग पाथवे है. फोविया के अंदर डायरेक्ट पाथवे है और रेस्ट ऑफ द रेटिना में इनडायरेक्ट पाथवे. मतलब कि जो रॉड का जो कनेक्शन होता है बाइपोलर सेल्स गैंग्लियन सेल तक, तो रॉड टू बाइपोलर सेल्स टू एमाक्राइन सेल और एमाक्राइन टू गैंग्लियन, तो ये इनडायरेक्ट पाथवे है. लेट मी जस्ट ब्रिंग यू टू दैट डायग्राम बिकॉज अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जस्ट गोइंग टू शो यू द डायग्राम. See, these are the rods, yellow colored rods to bipolar cells, and you can see that those bipolar cells, this pathway, amacrine cells से जाके फिर वो ganglion cells तक जाएगा. Means the amacrine cells are the prerequisite for rod pathway. यहाँ पे आप देख सकते हो कि most of the rods to bipolar cells, and these bipolar cells are not directly synapsing with ganglion cells. They have to pass through amacrine cells. ये amacrine cells से पास होके ही फिर वो ganglion तक पहुंच पाएगा. For most of the rods, this is the pathway, or you can say that rod type of vision involves three intermediaries: rod to bipolar, bipolar to amacrine, and amacrine to ganglion. तो मतलब ये 1, 2 और 3 है. Here for cone, you can see that amacrine cell is the not prerequisite. कोन, बाइपोलर एंड डायरेक्टली गैंग्लियन. एमाक्राइन सेल उसके लिए एकदम ऑब्लिगेट नहीं है, वहां से ट्रांसमिशन इज नॉट एन अटमोस्ट रिक्वायरमेंट. तो दिस इज डायरेक्ट पाथवे और ये इनडायरेक्ट पाथवे है. इनडायरेक्ट क्योंकि वो एमाक्राइन से चैनलाइज हो रहा है, तो इट इज इनडायरेक्ट. सो एंड इन फोबिया, ये पर्टिकुलर फोबिया में है.
fovea में we know that only cones are present, there are no rods. Rest of the retina में cones भी है और rods भी है. तो rest of the retina में भी जहाँ पे cones है वो direct pathway follow करेगा, जहाँ पे rods है here you can see that वो indirect pathway ही follow करेगा. So this is asked commonly in Viva, so I stress on that. Then let's get back to the slide which we were talking about. Yes, so functions of hemacrine cells. So it is the part of the indirect pathway for rod vision, right? That is from the rod to the bipolar cells and to the hemacrine to the ganglion cells. Next, दूसरे कौन से टाइप के hemacrine cells है? So there are some type of hemacrine cells which will respond strongly at the onset of a visual signal. मतलब जैसे मान लो कि आपने फील्ड ऑफ विजन चेंज की, यू आर लुकिंग एट समथिंग एंड देन यू जस्ट लुक साइडवेज, आपने राइट साइड या लेफ्ट साइड देखा और आपका फील्ड ऑफ विजन चेंज हो गया, तो वो जो नया विजुअल सिग्नल मिला तो उसके शुरुआत में ही, जैसे आपने राइट साइड पे जैसे ही देखना शुरू किया तो उसके शुरुआत में हेमाक्राइन सेल्स, कुछ ऐसे हेमाक्राइन सेल्स है जो फायर करेंगे और फिर वो एडेप्ट हो जाएंगे. सो रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली एट द बिगिनिंग ऑफ अ विजुअल सिग्नल. दूसरे टाइप के ऐसे है जो रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली एट द एंड ऑफ अ विजुअल सिग्नल. सो देयर आर these three types, and 4 and 5 types of hemacrine cells have been described. चौथा कौन सा है? That when the light is turned on or off, लाइट जब आपने चालू की और बंद की तो उन दोनों समय, when the light is turned on or it is turned off, it is responding. So what should we understand from this? For example, I will give you just a beautiful example. आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, आप उसकी जो बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन है, the background illumination or the brightness of your mobile, you try to bring it to very low, then the screen will be dark, right? तो उस समय कुछ हेमाक्राइन सेल रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर आप एकदम ब्राइट कर दो तो उस समय कुछ हेमाक्राइन सेल they will fire and then they will adapt. So respond only when the light is turned on or off. मतलब कि आपका बैकग्राउंड इल्यूमिनेशन है वो जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा तभी वो फायर करेंगे और फिर नहीं. तो दिस इज 4th टाइप ऑफ हेमाक्राइन सेल. और पांचवा कौन सा है? 5th टाइप. दैट लेट्स सी दिस responds to movement of a spot across the retina. Okay, so for example you are reading a book, right? अभी रेनी सीजन है so there is problem of mosquitoes and flies in the home. So you are reading and a mosquito passes by through your field of vision. जो mosquito है आपके field of vision से जाता है, so immediately your eyes come to know that there is some movement in the visual field, कुछ change हुआ, so responds to that movement. So there are some types of hemacrine cells which will respond to that movement of a spot across the retina. वो किस डायरेक्शन में गया वो भी आपको पता चल जाएगा. So they are directional sensitive hemacrine cells. In which direction that spot has moved in the visual field. So there are these 5 types of hemacrine cells. So I'll just recapitulate. Indirect pathway का एक hemacrine cell है. Second, at the beginning of the visual image. Then third, at the ending of the visual image, new visual image. Fourth, background illumination on or off. And the 5th type is directional sensitive, which is responding to the movement of a spot across the field of vision. So these 5 types of hemacrine cells are there, and you have to remember. Now comes the discussion regarding the ganglion cells. And for ganglion cells, these are the numbers which you have to remember, or just for your knowledge, for general information, that each retina contains 100 million rods and 2 million cones. So you can see that there are many rods and cones are very less in number. But if you talk about ganglion cells, so ganglion cells are only 1.6 million. So cones से भी कम है.
So on an average 60 rods and 2 cones for 1 ganglion cell. अगर हम इसका रेशियो बात करें तो 60 rods and 2 cones for 1 ganglion cell, and the ratio will decrease from peripheral to central. मतलब कि जैसे सेंट्रल की तरफ जाओगे तो वहाँ पे कम rods and less cones are there for 1 ganglion cell. So in the region of fovea, a single cone for a single ganglion cell 1:1 उसका connectivity होता है in the region of fovea. And ganglion cells are also two types: on center, off surround, off center, on surround. There are two types of ganglion cells, same as the bipolar cell. Now ganglion cells, read this. Ganglion cells will bring information to the visual cortex. Ganglion cell visual cortex को inform करता है about small circumscribed area on a definite position on the retina. इसको विजुओटोपिक बोलते हैं या फिर रेटाइनोटोपिक, मीनिंग दैट जिस तरह से स्किन से कोई भी सेंसेशन टच या पेन का, जैसे उसका एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है कॉर्टेक्स में, जैसे कि ये हैंड का एरिया है, ये लेग का एरिया है, ये बैक का एरिया है, फेस का एरिया. तो सेम वे each and every part of the retina is represented in the visual cortex, and we come to know that, and you know that the retina पे ultimately तो हमारा visual field project करेगा, the temporal or the nasal half of the visual field or the right or the left half of the visual field. तो वो visual field का मतलब कि वो पेरिफेरी में जो हो रहा है वो हमारे ultimately retina से जाके visual cortex में project करेगा, because every part of the retina is projected on the visual cortex, or represented is the better word, in the visual cortex. So the axons of the ganglion cells, they will form the optic nerve fibers. They will carry each and every small localized area from the retina to the visual cortex. So the ganglion cells, हम अल्टीमेटली जब रिसेप्टिव फील्ड की बात करेंगे तो गैंग्लियन सेल्स की बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं के एक्सॉन्स हैं जो ऑप्टिक नर्व बनाएंगे. तो गैंग्लियन सेल्स, दे आर टिपिकली एक्साइटेड फ्रॉम अ स्मॉल सेंट्रल सर्कल एंड इनहिबिटेड फ्रॉम द पेरिफेरल सर्कुलर जोन. जिस तरह से सेंसरी में बाकी सब सेंसेशंस में होता था कि सेंट्रल स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड एरिया है, वहाँ से वो एक्साइट होगा और नेबरिंग सराउंडिंग जो सर्कुलर जोन है वहाँ पे लैटरल इनहिबिशन हो जाएगा. So this is the rule in all the sensory systems. So together the receptive field of all the ganglion cells, सभी ganglion cell की receptive field जो है उनको मिलके पूरा visual field बनेगा, right? And यहाँ पे देखो कि ganglion cells that lie side by side in the retina have overlapping. Overlap थोड़ा होगा but identical नहीं होगा. So this is very important that there will be some overlapping, but there won't be any identical receptive field. तो मतलब कि यदि थोड़े ganglion cells destroy हो जाएंगे तो थोड़ा loss भी होगा, because there is no complete overlapping. तो पूरा identical नहीं है. So this is important. Now see, if you want to look at the central or differentiate at the central and peripheral retina at a glance, this is what it is. सेंट्रल रेटिना में रेशियो जो है कोन्स और रॉड का वो कम है, पेरिफेरल रेटिना में ज़्यादा है, मोर रॉड्स एंड कोन्स फॉर वन सेल. सेकेंड, सेंट्रल रेटिना मीन्स फोविया. तो फोविया में जो कोन्स है, स्पेशली कोन्स, राइट, दे आर वेरी थिन, वो थिन होंगे, जबकि पेरिफेरल रेटिना में कोन्स और रॉड्स जो है वो थोड़े ज़्यादा थिक होंगे, ज़्यादा थोड़े मोटे होंगे, राइट. ओके, नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाई द कोन्स इन फोविया आर थिन एंड स्लेंडर? Are thin and slender. If you have read this topic,
then you should be able to answer it. The cones in foveal region, they are thin and slender compared to the rest of the retina. Especially if you read some books, then they have specified the diameter also. Cones का diameter भी mention किया है वहाँ पे. Yes, people, what is the answer? Because less area and large number in more, because less area and large number in cell, more cones can for maximum. Okay, so yes, maximum visual acuity, yes, but क्या आपको उसकी फिजियोलॉजी पता है कि विजुअल एक्टिविटी कोन्स की साइज कम होने से विजुअल एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? So this is the another answer. नहीं, some layers are absent in fovea, that is not the answer. Maximum visual acuity is the answer, yes, but how? If the cones are thin, how does it translate into maximum visual acuity? With the surface? No. Just try to go one step further. विजुअल फील्ड में आपके बहुत सारे बॉर्डर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको अप्रिशिएट करनी है. थिन से भी थिन बॉर्डर आपको अप्रिशिएट करनी है. यू नो, इवन द थिन बॉर्डर्स एंड थिन लाइन, वेरी फेंट लाइन, यू हैव टू अप्रिशिएट. आई एम गिविंग अ क्लू. Okay, now listen. See, if the cones are thin, then its receptive field also will be small. Understand this. If the cones are thin, उसका जो receptive field है वो भी small होगा. तो मतलब कि वो small receptive field पे वो small छोटा सा image बनेगा, बहुत ही छोटा सा. You can understand कि वो जो पेरिफेरी का जो इमेज है छोटा सा वो बनेगा. तो मतलब कि वो ज़्यादा थिन होगा तो उसका रिसेप्टिव फील्ड कम होगा. तो वो पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर वेरी थिन बॉर्डर होगी उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है तो वो अच्छे से हो जाएगा. ओके, सो दिस इज, आई थिंक डायरेक्टली समवन हैज put from the guide, and person can normally distinguish two separate points. So you can read this theory in the book, it has been written. I am trying to explain you that if the cones are thin, then their receptive field will be small. If the receptive field is small, it will be very easy to differentiate between two lines which are very close. दो लाइन यदि बहुत ही क्लोज है तो उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो करना है तो बहुत ही इजी हो जाएगा. इफ द कोन्स आर having small receptive field, and that small receptive field is possible if the cones themselves are small in size. Diameter I am talking about. Okay, so I hope you have followed this. Now central retina is less sensitive to light. वो तो obvious है क्योंकि वहाँ पे वो clarity के लिए बहुत ही important है. जबकि peripheral retina जो है that is more important for detecting light. Detecting light, peripheral retina is important. And anyways rods are 30 to 300 times more sensitive to light, you know, because they have lot of photosensitive pigment. बहुत ही ज़्यादा photosensitive pigment है उसके पास. Second is ज़्यादा number of rods. You can see that 60 rods are synapsing with one ganglion cell in the peripheral part, so it is able to detect light easily. Now from this slide onwards, for the next couple of slides, pay attention. ये important है. We have total 3 types of ganglion cells. हमारे पास total 3 टाइप के ganglion cells होते हैं. सबसे पहला, okay, the names are W, X और Y. एक W टाइप का ganglion cell है, एक X टाइप का ganglion cell है और एक Y टाइप का.
तो मतलब एक्स वाई जेड नहीं है, डब्ल्यू एक्स एंड वाई. दिस इज हाउ दे वर नेम्ड. W type of ganglion cell, X type of ganglion cell, and Y type of ganglion cell. Examiners love to ask this question that what are the types of retinal ganglion cells? कितने टाइप के होते हैं, क्या उनकी विशेषता है? They love to ask this question. Now, what is the proportion? So W type of ganglion cell 40% proportion है उनका. Diameter जो है उनका 10 microns है. और कंडक्शन वेलोसिटी आप देख लो 8 मीटर पर सेकेंड. 8 मीटर पर सेकेंड उनकी कंडक्शन वेलोसिटी है उनके ऑप्टिक नर्व फाइबर की. दूसरा, रॉड विजन जो है, रॉड का जो विजन है वो डब्ल्यू सेल्स के थ्रू जाएगा. तो मतलब आप देख सकते हो कि पूरे रेटिना में 40%, 40% जो है वो डब्ल्यू टाइप के सेल्स है और वो रॉड विजन ट्रांसमिट करेंगे. रॉड विजन क्या होता है कि केवल लाइट को डिटेक्ट करना है, राइट. दे वांट टू डिटेक्ट लाइट, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो जो डब्ल्यू टाइप के जो गैंग्लियन सेल्स है उनकी जो रिसेप्टिव फील्ड है वो बड़ी होगी, बिकॉज द डेंड्राइट्स ऑफ द गैंग्लियन सेल्स, डब्ल्यू टाइप के गैंग्लियन सेल्स के जो डेंड्राइट है वो ज्यादा वाइडली स्प्रेड करेंगे इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में. वो इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में बहुत ही ज्यादा स्प्रेड होती है, तो उनको बड़ी जगह पे सिग्नल्स मिलते हैं. दे विल रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रॉड एरिया. फ्रॉम ब्रॉड एरिया दे विल रिसीव सिग्नल. So their receptive fields are, so you have to remember this thing. W type of ganglion cell is responsible for rod type of vision. 40% उनका proportion है, diameter 10 micron, velocity 8 meters per second. ये figures आपको याद रखनी होगी. सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी रिसेप्टिव फील्ड बड़ी है क्योंकि इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में उनके डेंड्राइट्स काफी स्प्रेड होते हैं. दैट्स इट. एफरंट इनपुट क्या है? तो रॉड, बाइपोलर एंड हेमाक्राइन, मतलब वो इनडायरेक्ट पाथवे से उनको एफरंट इनपुट मिलेगा. रॉड से जाके बाइपोलर सेल्स और बाइपोलर से जाके हेमाक्राइन सेल्स. तो ये उनका एफरंट इनपुट है. फंक्शन काम क्या करेंगे? तो डिटेक्टिंग द डायरेक्शनल मूवमेंट इन द फील्ड ऑफ विजन. किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है वो डिटेक्ट करने के लिए वो इम्पोर्टेंट है, पहला. दूसरा, डार्क, जो हमारा जो रॉड विजन है अंडर डार्क कंडीशन, द रॉड विजन जो है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. तो दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द रॉड विजन. रॉड विजन इज क्रूड. रॉड विजन में क्लैरिटी नहीं होती है क्योंकि वो केवल लाइट डिटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है. तो वो रॉड विजन के लिए इम्पोर्टेंट है. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द डब्ल्यू टाइप ऑफ सेल. नेक्स्ट, एक्स सेल. एक्स जो सेल है वो क्या काम करेंगे? तो देखो कि ह्यूमन रेटिना में उनका जो प्रपोर्शन है वो 55% है. तो दिस इज द मैक्सिमम, राइट. 55%. डायमीटर क्या है? तो देखो कि डायमीटर थोड़ा बढ़ गया, 10 to 15 माइक्रॉन उनका डायमीटर है. और दूसरा ये आपने नोट किया कि जैसे डायमीटर बढ़ेगा द कंडक्शन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ेगी. And what is the function? So receptive field, okay, we shall come to the function. Receptive field is small because उनके डेंड्राइट है जो रेटिना में ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, और इसी की वजह से वो जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो स्पेसिफिक रेटिना के स्पेसिफिक पार्ट से सिग्नल उनको लेके जाएंगे कॉर्टेक्स तक, विजुअल कॉर्टेक्स. So their signals represent discrete means small independent, discrete retinal location. This is very important. उनका फंक्शन, एक्चुअल जो हमारा विजुअल इमेज है, जैसे आपके स्क्रीन पर अभी आप ये स्लाइड देख रहे हो, तो ये स्लाइड के जो ईच एंड एवरी वर्ड है, राइट, वो जो भी ट्रांसमिशन करेगा वो एक्स टेक्स्ट लेके जाएगा. फाइन डिटेल्स ऑफ द विजुअल इमेज आर ट्रांसमिटेड. फाइन डिटेल्स मीन्स छोटी से छोटी डिटेल्स. और एवरी एक्स सेल रिसीव्स इनपुट फ्रॉम एटलीस्ट वन कोन. जो मतलब यहाँ पे देखो ये फोवियल टाइप ऑफ विजन के लिए इम्पोर्टेंट है स्पेशली. तो एक्स टाइप के जो गैंग्लियन सेल्स है उनको एटलीस्ट एक कोन से इम्पल्स मिलेगा. और एक्स ट्रांसमिशन जो है वो हमारे कलर विजन के लिए भी इम्पोर्टेंट है.
So examiner will ask, what is the function of X type of ganglion cell? You have to answer this. The fine details of the visual image are transmitted. Second, it is also responsible for color vision. That's it. ये important है. In the final लास्ट है वाई सेल. वाई सेल तो 40%, 55% तो बचा 5%. तो केवल 5% जो है वो वाई टाइप के सेल्स है जिनका डायमीटर मैक्सिमम होगा 35 माइक्रोन और कंडक्शन वेलोसिटी उनकी सबसे ज्यादा है 50 मीटर पर सेकेंड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिसेप्टिव फील्ड तो ये देखो कि उनकी भी जो डेंड्राइटिक फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है और वो रेटिना के काफी सारे हिस्से से सिग्नल पिकअप करेंगे. So what is the function? So whenever, this is very important, whenever there are going to be rapid changes in the visual image, एकदम से फास्ट रैपिड चेंजेस होंगे, इधर रैपिड मूवमेंट और रैपिड चेंज इन लाइट इंटेंसिटी. हमने पहले थोड़ी टाइम पहले अभी एमेक्राइन सेल्स के फंक्शन के बारे में बात की थी. मैंने बोला कि चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन या फिर एनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, तो वो जो है वो सिग्नल करेगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अ मॉस्किटो फ्लाइंग थ्रू द विजुअल फील्ड. आप बुक पढ़ रहे हो और मॉस्किटो इज फ्लाइंग बाय, देन दैट रैपिड चेंजेस आर पिक्ड अप. तो इधर रैपिड मूवमेंट और रैपिड चेंज, सेंडिंग बर्स्ट ऑफ सिग्नल. तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड the signal intensity will increase through the Y type of ganglion cell, and the brain will be informed that such and such change or such and such obstacle or whatever something has moved in the visual field, and then you can take the next step of action or the next steps you can take. So there are these two types of ganglion cells. Class, is this clear? दिस इज इम्पोर्टेंट. ये जो गैंग्लियन सेल्स का जो है ये पूरा टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है. सो आई जस्ट वांट यू टू बी क्लियर अबाउट दिस. थ्री टाइप्स ऑफ गैंग्लियन सेल्स. ओके, सो देन फाइन, यू कैन मूव अहेड. These ganglion cells will inform the central nervous system, right, about a new visual event. मतलब ये वाई टाइप के सेल्स की बात कर रहा है कि कोई भी नया विजुअल इवेंट हुआ है विजुअल फील्ड में, तो उसके बारे में वो बताएगा ब्रेन को. उसका लोकेशन क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है, जो भी वो मॉस्किटो व्हाटएवर हैज मूव्ड, वेयर इट इज लोकेटेड, और ऑल दोज आइडिया इट डजंट प्रोवाइड, और it will just inform that some change has occurred. So then the eyes will want to move. मतलब कि eyes, वो जो एक बार पता चला कि कुछ नया ऑब्जेक्ट मूव हुआ है, तो यदि उसको देखना है तो फिर eyes will automatically via ocular movement, वो पूरा जो रिफ्लेक्स है उससे फिर हम उस पर फोकस करेंगे कि भाई क्या निकल गया हमारे विजुअल फील्ड से. So now I will be explaining to you this thing subsequently. Just wait for a while. तो ये अलग अलग टाइप के गैंग्लियन सेल्स हैं. अभी रोल ऑफ लैटरल इनिबिशन, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है कि देखो यहाँ पे ये देखना है कि एक्टिविटी, ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ गैंग्लियन सेल एक्टिविटी shows that the retinal ganglion cell does not give idea about the absolute light intensity. So एब्सोल्यूट लाइट इंटेंसिटी कितनी है उसके बारे में पता करने से अच्छा है कि रिलेटिविटी दो चीज है उसमें कितना डिफरेंस है वो अप्रिशिएट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंटेंसिटी, द एक्टिविटी ऑफ द गैंग्लियन सेल इज मेनली फोकस्ड ऑन डिटेक्टिंग द कॉन्ट्रास्ट ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन द लाइट फॉलिंग ऑन द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल पार्ट. मतलब कि सेंट्रल वाले हिस्से पे और पेरिफेरल वाले हिस्से पे, मतलब सेंट्रल फील्ड और पेरिफेरल फील्ड में कॉन्ट्रास्ट कितना है वो डिटेक्ट करना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ऑन सेंटर एंड ऑफ सेंटर मैंने ऑलरेडी बात की थी, तो वही बात कर रहा है. जिस तरह से बाइपोलर सेल है दो टाइप के, उसी तरह दो टाइप के गैंग्लियन सेल्स भी है.
So, for example, this type of things are there. On center of ground. This is on center of ground bipolar cell. It will synapse with on center of ground ganglion cell. और ये जो है off center on surround, it will synapse with off center on surround ganglion cell. So this type of pathway is there. और आप देख सकते हैं कि जब ये ऑन सेंटर वाला फायरिंग करेगा, ऑन सेंटर जब सेल फायर करेगा तब ऑफ सेंटर फायर नहीं करेगा. ऑफ सेंटर विल नॉट फायर बिकॉज ऑफ लैटरल इनिबिशन. So all these images are taken from Guyton. You can see that they have beautifully explained this thing, this concept. Okay, so now that finishes the topic on the ganglion cells. अभी हमारे पूरे विजन को कवर करने के लिए क्या बाकी रहता है, तो विजुअल पाथवे में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, उसके 6 न्यूक्लियर लेयर्स है. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है 6 न्यूक्लियर लेयर एंड द विजुअल कॉर्टेक्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ इमेज. तो वो मैं सैटरडे को कवर करूंगा. लेटरल जेनिकुलेट बॉडी पे में काफ़ी थोड़ा फोकस करना है और कॉर्टेक्स में विजुअल इंटरप्रिटेशन कैसा होता है वो थोड़ा डीप में जाएंगे. बट वी शैल बी एबल टू कवर इट कंफर्टेबली इन 1 आवर. राइट नाउ अभी 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समझानी है, वो जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. और वो 2 चीज़ें हैं एकोमोडेशन और लाइट रिफ्लेक्स. मैंने लास्ट टाइम बात की थी मंडे को, लेकिन मैंने रिफ्लेक्स पाथवे मैंने आपको तभी नहीं बताया था. तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिफ्लेक्स पाथवे ऑफ द एकोमोडेशन रिफ्लेक्स एंड द लाइट रिफ्लेक्स. तो सबसे पहली चीज ये है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, राइट, जो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. तो एडिंगर वेस्टफाल इज अ पार्ट ऑफ द थर्ड नर्व न्यूक्लियस. It is not the third nerve nucleus. Edinger-Westphal is a part of third cranial nerve nucleus. तो प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर यहाँ से निकलेंगे ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस से, और सिलियरी गैंग्लियन में साइनेप्स करेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के साथ. पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर सिलियरी गैंग्लियन से बाहर निकल के जाएंगे और सिलियरी मसल्स को सप्लाई करेंगे, और जो प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन करते हैं आइरिस के जो स्फिंक्टर प्यूपिले मसल्स. सो द स्फिंक्टर प्यूपिले मसल्स एंड दी सिलियरी मसल्स. सिलियरी में दोनों मसल्स, मेरिडायनल और रेडियल, मेरिडायनल एंड सर्कुलर. सो द मेरिडायनल एंड सर्कुलर मसल्स ऑफ दी सिलियरी बॉडी एंड दी स्फिंक्टर प्यूपिले, इन सब का जो है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई यहाँ से आएगा. तो आप देख सकते हो कि सिलियरी बॉडी के अंदर के दोनों के मसल्स ये जो है सप्लाई करेगा, लेकिन आइरिस का केवल प्यूपिलो कंस्ट्रक्शन, ये जो स्फिंक्टर प्यूपिले उसको सप्लाई करेगा. सो द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कैन कॉज द लेंस टू बिकम मोर और लेस ग्लोबुलर. लेंस को ज्यादा ग्लोबुलर भी बना सकता है और कम ग्लोबुलर भी बना सकता है. ओके, so at this point I am going to ask you constriction of which muscles in the ciliary body is going to make the lens convex, and constriction of which muscle in the ciliary body is going to make the lens less convex. More convex and less convex lens is by contraction of which muscles in ciliary body. This I want to emphasize because it is asked in Viva. Ciliary body में कौन से टाइप के मसल्स होते हैं? Okay, ciliary circular muscle contraction will make the lens more convex. और दूसरे कौन से टाइप के फाइबर्स होंगे? लॉन्जिट्यूडिनल नहीं बोलना है, इसको मेरिडायनल बोलना है, इसी के लिए मैंने ये पूछा. इट इज नोन एज मेरिडायनल फाइबर. मेरिडियन, मेरिडायनल फाइबर्स होंगे.
उसको लॉन्जिट्यूडनल नहीं बोलना है, दे आर मेरीडायोनल फाइबर. फाइन. So now this is the pathway. So this pathway is for light reflex. ये लाइट रिफ्लेक्स का पाथ है. ये आपको देखना है कि लाइट इज शाइनिंग इनटू दिस आई, लेफ्ट आई. तो जो सिग्नल्स है वो रेटिना से जाएंगे, रेटिना से ये ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये काइज्मा और ये ऑप्टिक ट्रैक्ट. तो देखो कि ये जो टेम्पोरल और नेजल जो भी है, दोनों से मिलके इम्पल्सिस जाएंगे प्री टेक्टल न्यूक्लियस. मिड ब्रेन के अंदर हमने देखा था कि मिड ब्रेन के डॉर्सल वाले हिस्से में यहाँ पे सुपीरियर कॉलिक्यूलस है और यहाँ पे प्री टेक्टल न्यूक्लियस है. तो प्री टेक्टल न्यूक्लियस के अंदर जाके फिर जो है इम्पल्सिस एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में जाएंगे, which is a part of third nerve, cranial nerve nuclei. और फिर एडिंगर वेस्टफाल से हमने देखा कि पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आएंगे सिलियरी गैंग्लियन में, और सिलियरी गैंग्लियन से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकल के फिर स्फिंक्टर पुपिले में जाएंगे. तो ये है पूरा उसका रिफ्लेक्स आर्क, लाइट रिफ्लेक्स का रिफ्लेक्स आर्क. ये आपको आना चाहिए. ये वाइवा में जिनको भी ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम आएगा, सुपरफिशियल रिफ्लेक्सिव, राइट, तो ये सुपरफिशियल जो ये आता है लाइट रिफ्लेक्स, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स एंड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स. तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइट रिफ्लेक्स के लिए जो सेंटर है वो विजुअल कॉर्टेक्स में ही है. लाइट रिफ्लेक्स के लिए सिग्नल्स हमारे कॉर्टेक्स तक नहीं जाएंगे. लाइट रिफ्लेक्स के लिए जो इंटीग्रेशन है वो यहीं पे हो जाएगा, प्री टेक्टल न्यूक्लियस से ही होके फिर से यहाँ पे आ जाएगा. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे गलती नहीं करनी है. अब जो है हमने स्फिंक्टर पुपिले की बात की है, डायलेटर पुपिले की बात करनी है. तो डायलेटर पुपिले जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर्स है. तो सिंपैथेटिक जो है अपर थोरेसिक सेगमेंट से होके सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन है. यहाँ पे सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है, राइट. तो यहाँ पे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है. सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में साइनेप्स करेंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और पोस्ट गैंग्लियोनिक यहाँ से निकल के कैरोटिड प्लेक्सस से होके फिर डायलेटर पुपिले, आइरिस के जो डायलेटर पुपिले उनको सप्लाई करेंगे. तो ये थोड़ा अलग है. पैरासिम्पैथेटिक यहाँ से आएगा और जो सिंपैथेटिक वो यहाँ से आएगा. सो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर they will arise here. Then the post ganglionic fibers, they will run along the carotid artery in the plexus, carotid plexus, और डायलेटर आइरिस मसल्स में पहुंचेंगे. और जो लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियोरिस है उनके अंदर भी कुछ सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे, उनको भी सप्लाई करते हैं. What is the action? Pupillodilation and elevation of upper eyelid are the two actions which are under sympathetic control. और यहाँ से होके हमारा एक अप्लाइड कंसेप्ट आता है, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. तो ये हो गया प्यूपिलरी डायमीटर का कंट्रोल कैसे होता है कि स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक विल लीड टू मायोसिस. मायोसिस मींस प्यूपिलोकंस्ट्रिक्शन, whereas stimulation of sympathetic will lead to mydriasis, which is pupillodilation. So pupilloconstriction and pupillodilation will regulate the amount of light which is entering. और ये मैंने आपको बताया है पहले कि 30 times the light intensity can change. So this is what it is. Now, तो pupil की एक बात हो गई. अब हम एकोमोडेशन की बात करेंगे. मैंने आपको पहले बताया कि पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई है सिलियरी मसल्स का, राइट, वो भी जो है पैरासिम्पैथेटिक जो है दैट इज इन दिस पर्टिकुलर फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस ओनली इट इज कमिंग सिलियरी जो मसल्स का है. बट द सेंटर इज डिफरेंट. आई एम मूविंग द स्लाइड फास्ट. नाउ सी what is accommodation. So it is the mechanism which will help to focus the lens system of the eye for a high degree of visual acuity, meaning that if you want a very high degree of visual acuity for both near and far vision,
नजदीक और दूर के विजन के लिए हमको हाई डिग्री ऑफ एक्टिविटी चाहिए, तो उसके लिए जो मैकेनिज्म है फोकसिंग का, वो उसको बोलते हैं ये एकोमोडेशन। We know that the contraction will increase the refractive power. Relaxation, okay, so relaxation यहाँ पे हम बोलेंगे कि meridional, so this will cause the decreased power, right? So what you need to understand is that this accommodation, the center is here. So this is light reflex and this is the reflex pathway for the accommodation. Have a close look what is happening. Try to follow the blue and the red line. So what you can see here that the visual signals, what is happening is this is the sensory, this blue is the sensory. यहाँ से ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक कायज्मा, ऑप्टिक कायज्मा से ऑप्टिक ट्रैक से जाएगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जाएगा जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक, एंड फ्रॉम द जेनिकुलो कैल्कराइन ट्रैक टू द विजुअल कॉर्टेक्स. यहाँ पे पता चलेगा कि भाई वी वांट टू एकोमोडेट, वी वांट टू चेंज द एकोमोडेशन पावर बिकॉज समथिंग इज नॉट क्लियर, हमको या फिर नजदीक देखना है. तो यहाँ पे सिग्नल्स इनिशिएट होंगे. You can see that the signals will pass to the pretectal area. Again the pretectal area. Pretectal area से आएगा oculomotor nuclei में, एडिंगर वेस्टफाल में. यहाँ से जो है फिर सिग्नल्स जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये आप देख लो कि यहाँ पे it is going in two sides. यहाँ पे जाएगा this thing oculomotor nerve में जाएगा, और oculomotor nerve में आप देख सकते हो कि it is going to supply the ciliary muscle first of all, right? So this oculomotor nerve and it will supply the ciliary muscle. So supply to the ciliary muscle, right? Here supply to the ciliary muscle here, and here you can see that they are it is also supplying the medial and the medial recti muscle, because you want the medial recti on both the sides to contract and the eyeballs to converge. So basically along with accommodation there is movement of extraocular, there is contraction of extraocular muscles as well. So the signals are initiated and the signals are passing in the ciliary ganglion, यहाँ से जाके ciliary muscles में, साइमल्टेनियसली oculomotor nerve में यहाँ पे जाके ये जो है medial recti muscles से वो signals जाएंगे. So this is the accommodation reflex. So just you can look at this diagram in the books and you can understand that light reflex and accommodation reflex, how the things are different. Light reflex का सेंटर केवल यहाँ पे है, कॉर्टेक्स तक इसके सिग्नल्स लाइट रिफ्लेक्स के नहीं जाएंगे. फॉर accommodation the signals are integrated here in the visual cortex. You can compare these two things. So accommodation of the lens, you know, it is regulated by negative feedback mechanism which will automatically adjust the power. So that automatic adjustment to make the lens more convex or less convex, that will happen within a fraction of second, or you can say less than 1 second. So if you are looking at a far object and then you feel that you want to look at a near object, तो वो जो accommodation है वो 1 second के अंदर हो जाएगा. So see, the lens system is right now accommodated for far vision. You felt the need to look at a near object. Signals from occipital cortex to ciliary muscles and medial recti. Lens will become globular, increase power, and the eyes will converge, और accommodation for near vision हो जाएगा. तो ये नेगेटिव फीडबैक इसलिए लिख रहा है क्योंकि थोड़ा ट्रायल एरर होगा कि ऐसा होगा कि लेंस ज़्यादा ही ग्लोबुलर हो गया, फिर उसकी जो ग्लोबुलरिटी वो थोड़ी कम हो जाएगी ताकि उसका इमेज जो है फोविया पे अच्छे से एग्जैक्टली आए. So this is what it means by negative feedback. You already know what is negative. Hello. Is my voice clear? Hello, am I audible? You can just hello.
Okay, you can just troubleshoot at your end if there is any voice problem. Okay, fine, fine. So we have 10 minutes remaining. I'll just quickly, I mean, cover this thing. So this is how accommodation works. In the book, there are 4 mechanisms written for accommodation. Accommodation के लिए 4 mechanism लिखी है. तो वो 4 mechanism मैं आपको एक बार समझा दूं कि क्या है. कि accommodation के लिए एक है chromatic aberration. अभी ये क्रोमेटिक एबरेशन को आप ज्यादा डीप में समझने जाओ तो उसमें ये है कि जो लाइट रेज है वो पूरे व्हाइट लाइट जो है अलग अलग टाइप के कलर की बनी हुई है, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह. तो इन अवर विजुअल इमेज द डिफरेंट लाइट रेज दे गेट फोकस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बिहाइंड द लैम्प. द रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो जो है उसका फोकल पॉइंट वो ब्लू लाइट से कम होगा. तो ऐसा समझाया है बुक में कि क्रोमेटिक एबरेशन एक मैकेनिज्म है. दिस इज समथिंग मोर ऑफ रिलेटेड टू फिजिक्स. So even I won't be able to explain you this exactly what chromatic aberration is, but it is written that chromatic aberration is helping or it is providing the clue for accommodation. So we can skip this. Next thing is, see, when the eyes will fixate on a near object, तो नियर ऑब्जेक्ट के फोकस करने के लिए जो है आईज को कन्वर्ज होना है. तो कन्वर्ज होने का जो सिग्नल है उसके साथ ही एकोमोडेशन का जो सिग्नल है, मतलब कि सिलरी मसल्स, वो जो सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो बोथ दिस सिग्नल्स गेट साइमल्टेनियस और दे विल बिकम साइमल्टेनियस. सो दिस ऑलरेडी वी नो. नाउ द थर्ड मैकेनिज्म, यस, द थर्ड मैकेनिज्म इज दैट फोबिया जो है हमारा, फोबिया, दिस इज द फोबिया एंड दिस इज द एज. ये है फोबिया की बॉर्डर. Where my pointer is moving, that is the border of phobia. जो भी इमेज बनेगा तो वो फोबिया पे जो भी थोड़ा सा इमेज बनेगा वो और जो एज पे जो इमेज बनेगा उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा. तो उस डिफरेंस के बेस पे ब्रेन को या कॉर्टेक्स को ये पता चलता है कि मुझे किस डायरेक्शन में एकोमोडेशन चेंज करना है. मतलब कि ये वाला इमेज अच्छा है या फिर ये वाला इमेज अच्छा है. यदि ये वाला इमेज अच्छा है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन यदि ये वाला इमेज अच्छा है तो वो और ज्यादा उसको एकोमोडेट करेगा. See, because the phobia is lying in a depression which is slightly deeper, the clarity of focus in the foveal depth is different from the edges. So this will provide clue to which direction, which way the lens strength is need to be changed. तो ये एक मैकेनिज्म है. और फाइनल मैकेनिज्म है कि जो एकोमोडेशन का जो डिग्री है वो बहुत ही ऑसिलेट होते रहता है. ट्वाइस पर सेकेंड वो कंसिस्टेंटली ऑसिलेट होते रहता है. तो उस ऑसिलेशन में हमको ये ब्रेन डिटेक्ट करता है कि कौन से ऑसिलेशन पे बेटर है. सो दिस इज ऑल मोर स्पेशलाइज्ड कंसेप्ट एंड मोर ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड कंसेप्ट. सो आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू दिस. You just need to remember that accommodation कुछ है मैकेनिज्म. क्या है accommodation, उसका पाथवे क्या है, what are the clues. तो ये क्लू है क्रोमेटिक एबरेशन. आप केवल नाम बोल दोगे तो भी चलेगा. ये दूसरा मैकेनिज्म है. ये थर्ड मैकेनिज्म है. फोबिया पे डेप्थ पे और एच पे इमेज अलग बनते हैं. और ये चौथा मैकेनिज्म. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, नथिंग एल्स. एंड कंट्रोल ऑफ पिपिलरी डायमीटर ऑलरेडी मैंने बात कर ली है. तो कंट्रोल ऑफ पिपिलरी डायमीटर में मुझे जो एक आपको बताना है कि एक जो है देयर इज आर्जिल रॉबर्टसन पिपिल. आर्जिल रॉबर्टसन पिपिल करके एक डिफेक्ट है कि जिसमें सिफिलिस की वजह से होता है. सिफिलिस डिजीज है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है. तो जब भी ये सिफिलिस के अंदर जो है डैमेज कहाँ पे होगा, तो सिफिलिस है, अल्कोहलिज्म है और एनकेफेलाइटिस. ये तीन ऐसे है जिसमें जो है डैमेज होगा प्रीटेक्टल न्यूक्लियर और एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस में. तो आपका जो लाइट रिफ्लेक्स है वो ही ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन एकोमोडेशन प्रेजेंट रहेगा. तो आर्जिल रॉबर्टसन पिपिल ARP is the condition where accommodation is present but light reflex is absent.
याद रखना है, लाइट रिफ्लेक्ट और एकोमोडेशन मैंने आपको दो समझाया अभी। तो लाइट यदि एब्सेंट हो और एकोमोडेशन प्रेजेंट हो तो उसको आर्जिल रॉबर्टसन प्यूपिल बोलेंगे। इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट। दो में से कौन सा एब्सेंट है और कौन सा प्रेजेंट है वो कैसा पता चलेगा? तो ये नाम देखो, ARP, accommodation reflex present. When accommodation reflex is present and light reflex is absent, it is known as Argyll-Robertson pupil, and it is an important diagnostic sign of central nervous syphilis. That's it. फिर एक लास्ट आता है बिफोर वाइंडिंग अप, एक है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। तो ये एक डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि रिलेटिव एफरेंट प्यूपिल में क्या होगा। ये आपके स्क्रीन पे एक लास्ट इमेज आप देख लो कि अभी ये जो है राइट आई में अगर मैंने टॉर्च से लाइट डाली तो राइट आई में मैंने टॉर्च डाली तो उससे दोनों प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने लेफ्ट आई में टॉर्च डाली तो दोनों प्यूपिल जो है कंस्ट्रिक्टेड थे वो डायलेटेड हो जाएंगे या फिर वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, मतलब कि ये ओपन हो जाएंगे। वापस मैंने राइट आई में डाली तो वो अगेन देयर इज प्यूपिलो कंस्ट्रिक्शन वाया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। सो दिस इज नोन एज रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। तो उसमें होता यही है कि एक साइड पे जो है, लेफ्ट साइड पे जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज है, राइट साइड पे ऑप्टिक नर्व नॉर्मल है। तो क्या होगा कि यहाँ से लाइट सिग्नल्स जाएंगे और जो इफरेंट सिग्नल्स है वो यहाँ से सिलियरी गैंग्लियन पे आते हैं, तो दोनों पीपल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन जब लेफ्ट आई में टॉर्च डालूंगा तो उसके सिग्नल्स यहाँ पीछे जा ही नहीं पाएंगे, बिकॉज देयर इज डैमेज टू दी ऑप्टिक नर्व। So you can see that when the light is shown in the right eye, pupillar constriction is there, but when the light is shown in the left eye, there is no pupillar constriction, or rather there is pupillar dilation. This is known as relative afferent pupillary defect. Okay, so I think I shall wind up here, and this is all I wanted to say regarding this. I hope things are clear. On Saturday, I'm going to wind this up, and you can ask me doubts if you have on Saturday, and I shall be ending this session.